And that was all I needed as a young kid, and I liked to eat a lot. So I became friends with them very, very fast. And they taught me a lot about the Amway business. I would go to their meetings, I would watch what they did, meet with their groups, and just kind of be there with them during the time I was at university. Unfortunately, a number of years ago, the gentleman passed away quite suddenly. He was not that old, and we lost him. And they didn't have a huge Amway business. They had a nice business. They took care of themselves and their family. And I went down. I had heard about it, and I wanted to go to the funeral, so I came down. I wanted to go to visit. And I was thinking, okay, it might be hard to find the location, where the funeral's being held, and there's probably not going to be that many people there. And when I got to the funeral home, the parking lot was packed. There were people everywhere. License plates from cars all in the states surrounding this area. People had driven hours to come visit, to be with the family, to share their condolences. And as I was there, leaders, their upline said, "Don't you worry, Doug, we're going to take care of the family. We're going to be there with them. We're going to make sure that they can get through this together. We're not going to leave them alone. We're going to walk with them." And all I can think of is how powerful it is when people genuinely care about people. And I think of that scene or something similar to it when there's a tragedy in somebody's family, that Amway people are there for them, that they surround them, whatever that may be, that we're there for each other. This is a business about people. And so it's these ideas that stand the test of time and connect with cultures all over the world. So I'm not going to try to go through and read everything to you or go through it, but I want to talk about these founders' fundamentals. I'm going to start there and go to the values. But these are these timeless ideas that Dad and Jay talked about, and we were able to write them down because for most of our lives, they just lived these ideas and talked about these ideas. But when they were transitioning to our generation of leadership in the business, we said, you've got to write them down for us so we can make sure we're communicating and going in the right direction with what you have articulated. And so we talk about freedom and family and hope and reward, that these ideas connect across, as I said, they're timeless, that they connect across cultures, and they connect across generations. And they talked about freedom. Again, they grew up in a world that was shaped by two very difficult and challenging events in the United States for them. They grew up in the midst of the Great Economic Depression of the 1930s that changed their lives, that created a very impactful experience for them, and World War II. And so they lived in these areas where the future was very uncertain, and there were ideas about how people would live that were being challenged. And they landed on the side of freedom, personal and economic freedom. And the ideas that they talked about in high school, that they wanted to get in business together, they saw the idea of having their own business as a path to personal and economic freedom. And I was able to watch Jay and ultimately Steve as well when they served as the chairman of the U.S. Chamber of Commerce. That they
represented all of businesses in the United States of America, to the United States and to countries around the world. I saw how they stood for these ideas, the idea of personal freedom and economic freedom. And in Jay's speeches, he would talk about them. They are like twins that cannot be separated. They go together. These ideas are vital. And so this idea that when you are building your business, you're not only earning an income, you're building your life. And so we have to think in terms of the value and the importance of what this means to you, to your family, and to your future. This is not a business transaction. We are not in Amway as a business transaction. You do this, we do this, you do this, we do this. Sure, there's a lot of things we do like that, but our purpose is a relationship. We are committed to you for your lifetime and for the lifetime of the children and the family that follows. We have generational commitments. That's what that means. That's what that means. So it's powerful, that idea. And of course, family. Let's roll that one in a little bit. So many times, families are unique, right? We all have family stories, right? There's always, it's great when the family gets together, except, that person's there. And it's always great when the family gets together, except maybe that person's there. And one of the things that Dad would always joke about with us, when he would talk, he'd say, Jay and I were friends in high school. We chose each other. And then he looks at us and the next generation, goes, you all didn't have a choice. You didn't have a choice. You're stuck with it. He's kind of right. We didn't have a choice necessarily, but we decided to make the positive choice. We were going to be families. The two families of Anandles and DeVosses were going to be one family. And we make that choice every day with your family. We want to be part of your family too. We are in this together. Maybe you didn't choose the other lines of sponsorship that are in part of your organization. You chose your sponsor, you chose your upline, and you worked with your downline in your organization. Maybe you didn't choose the others. You didn't maybe choose the management. But we have to have this idea that says, I'm going to make a choice now, like a family commitment, that we are going to choose each other and we're going to work at something special together in a bond and with a relationship that cannot be separated. All right? That's what we mean by family, and the fact that this can go for your family for generations. One of the best things I love about this business is when we're together many times, and here's our children, here's our grandchildren. Look at the pictures, look at what's going on. They're active in the business. They're just getting started. They're making something happen. All these ideas, excuse me, that come together with this idea of family. Sorry, I'm so excited. I'm talking too much. Need a little water here. Sorry about that. All right, I'll keep going a little bit. Hope. I mentioned earlier the major events in Dad and Jay's life that shaped them with the Depression and World War II. But I'm sure that each and every one of you have something that shaped your life. And that was a challenge that you faced. And that something traumatic or something difficult happened. And it's easy when that happens in life to think that that's the way it's going to be for the rest of your life. And I want to congratulate you because you have moved through that. One of the biggest things that Dad would always talk about when he would talk about hope was this idea, this belief that you're not stuck.
that if you're in a bad place, that if something has gone wrong, that if something is tremendously difficult, you're not stuck there. You're not destined to be in that place forever. You can do something to move through and get to a better place. And that's the idea of Amway. You can do something about it, and you can find your way through to a better place. And wherever that is, again, for your situation, we don't know what that is for you. We don't know what that challenge may be, but we can tell you with certainty, because we've seen it in the lives of people around the world, that you are not stuck. And today, I would say, if we think of the challenges that we're facing in the marketplace, we are not stuck. We can do something about it, and we're going to do something about it together to keep ourselves moving forward. You know, some of you may know the stories that Dad and Jay would write letters back and forth to each other when they were serving in the U.S. Army, and to see some of those letters, you know, and that Jay would write, you know, hey, he called Dad Richie, you know, hey Richie, someday Richie, this war is going to end. Someday we're going to get in business together. Someday we're going to get back home and we're going to do something special. This idea that we're not stuck, whatever the challenges, we can do different things together and move our way forward. So that's what we're talking about. It's that idea. And it applies to life, and it applies to Amway, and it applies to our future. That allows us to dream big and then do the work necessary to achieve it. So that's where we go with hope. And then reward is the very human desire to say, when I do something, there should be some level of reward or thanks. And not without humility, not that you're only doing something because you want something there, but it's a fair thing to be rewarded and recognized for work that you accomplish, for talents that you contribute, for ways that you help. And so this idea of this simple plan, this plan. I was riding with my father in the car once, and he was just looking out the window, and I said, what are you thinking about? And he just smiled and laughed. He goes, the plan. I'm thinking about the plan. This simple idea, this simple structure that was put together, and that he and Jay refined to turn it into kind of what it is today, and that John and Luke and the team continue to refine, and all of us trying to think, how do we make a little change here and a little change here, and that's good to make it better, but the core essence of the plan is there, and it works. And it has worked, and it will continue to work, because it recognizes this idea that when you do something, you will get a reward. And it's very clear about how that works. And it's our job to make sure those two things get connected. And that then we have fun on the relationship side. That's when recognition comes in. That's when we can have fun at certain times. That's when we can really define leadership and recognize you for what you've accomplished, not only just with the plan, but the impact you are having on people's lives. You are leaders. You're here in this room as leaders, not only because you've met the criteria of the plan, but because you've helped other people be successful in their business, and that's special. And we know that, and we see that, and we celebrate that. So reward is all those human elements that are part of our relationship, where we say, we thank you, we appreciate you, we respect you, we acknowledge what you've done and what you've accomplished, and here's how we try to package it together in a way that makes sense.
and that is reliable and duplicatable, and that you can promise to people as well. And so those are some of the ideas. And if we take those as a package and we keep putting them together, those are the ideas that define who we are. These are the things that stand the test of time. Now I'm going to spend a little bit more time over here on the values side of things and talk about partnership, personal worth, responsibility, and integrity. And I'm going to take another sip of water. Before I do that, and I'm sorry, I'm probably just talking too much here, so my apologies for rambling on. But this idea of partnership is one of the most, so this is kind of the core of what we believe, and this is over here of the values. This is how we act. This is how we behave. This is kind of how we turn these beliefs into behaviors. That's the difference. And so these are the things, when we talked with the management team earlier today, how do we express these beliefs? How do we act in this manner and behave in this way inside the organization with the work that we do? And so this idea of partnership is one of the most powerful, yet most delicate relationships that we have. And because true partnership is defined through trust. And again, if I go back to the relationship that we saw with Dad and Jay, Jay and Rich, they trusted each other. And I remember Jay talking about their relationship with me once, and he talked about in the early days they really weren't together a lot. Dad was, Rich was out in the field and he was working with all the leaders in the field, and Jay was an aide at the company, and he was kind of dealing. It was like Mr. Outside, Mr. Inside, and he said, but the nature of our relationship is that we trusted each other. He said, your dad would be out there and he'd be talking with all the distributors at the time, and he'd be making decisions and he'd be taking action. And Jay said, and I supported him 100%. And then he smiled and looked at me and said, even when he was wrong. Right? And I laughed, and Jay continued. He said, of course, I was back here and I made decisions and I took actions, and your dad supported me 100%. And he smiled one more time and said, even when I was wrong. Right? Partnership exists between imperfect people. Right? None of us are perfect. But yet we have to find a way to continue to build trust. And when we make mistakes, that trust starts to erode. And that's the thing that breaks my heart more than anything. And that's one of the things that I think when we get together in this room and we talk, one of the things I look back in recent years where we've done some things, we've made decisions where we've broken some of that trust and hurt some of that belief. And that's what we're here to restore and rebuild and make sure we are recommitted to say, we absolutely believe in you and our relationship with you and our partnership with you and our commitment to build trust every day and in every action we take. But we're going to ask for forgiveness because we're going to make mistakes. We're not going to be perfect. But we're going to ask you to continue to believe in us and partner in us with us the same way we believe in you and partner in you. And recognize that when mistakes are made or when things go wrong, we still have a relationship. And then we come together and we find solutions together. All right? It's easy. I'm sorry, I'm rumbling over. Am I okay on time to? It's easy in a relationship when something goes wrong to jump right to blaming somebody. And Dad and Jay talked about that a lot. They said
never said, "I told you so," or we never tried to pin the blame. All they tried to do was understand the problem and figure out a solution. There's a friend of ours in Grand Rapids who had a business, and he was one of those guys that was wired a little bit differently. He was one of those guys who always had to find somebody to blame. And so when something went wrong, he just couldn't get through it, and he couldn't move on until there was somebody to blame. So his management team at his company, they figured this out, and they all volunteered at a time when something would go wrong. Even if it wasn't their fault, they would raise their hand and say it was their fault. So he could blame them and yell at them for a couple minutes and then move on. I don't know if that's the best way to do it. I don't think so. But I only share that story to say, we're all human. And we all come at these things a little differently. And it's tempting to blame each other, even when we do genuinely make mistakes. But I think it's more restorative and it's more powerful when we forgive and we keep coming back together and say we're going to be accountable for those mistakes. I'll talk about that in a second. But we're going to still be partners together. We're going to maintain our relationship and find a way to work together and move forward. That's what we're trying to do. And I'll go to the next one, responsibility. And responsibility, we are responsible for our actions. You are responsible for your actions. Whatever it is, your actions sometimes are inactions, and the results of those actions or inactions, we are responsible. And we believe that people are responsible, that we don't have to sit on top of people all the time and say, do this, do this, do this, do this, and like watch people and say, you got to do all this sort of stuff. We say, here's what we're trying to achieve, go do it. Because we believe that if people are given an opportunity, they do something with it. And they would try to do the right thing with it. Whether it's the plan and the simplicity of the plan that people would grab it, they would do something. They had that opportunity, they would do something just like what you've done. Or it's inside the company. But we need to all continue to work in the spirit of partnership and be responsible to one another and accountable to one another. And when we fail or when we make a mistake or when we kind of do something wrong, it's okay to talk about it and find our way around to get to the right spot. But that doesn't absolve any of us of being responsible for our actions. One of the most difficult things that ever happens in the Amway business, Rajneesh talked about earlier, when we have to confront somebody because they've broken the rules to such a degree that they can no longer be in the business because they're going to hurt everybody else. Hundreds. Breaks my heart. I hate hearing that. It just breaks my heart. But I know those are the actions we have to take. I've seen it in markets around the world that we have to hold ourselves accountable and responsible to do things the right way, whether it's inside the company or whether it's in the business or it's in the marketplace, whatever it is, we have to hold ourselves accountable together, be responsible to follow the laws, to follow the rules, to follow these ideas, the founders' fundamentals, these values, to apply them in our lives in a consistent, reliable way. Because that's how you hold us all together. We have to have that responsibility and that accountability to each other. Upline, downline, different lines of sponsorship, company, field, company, India, headquarters. You get what I picture, right? You get the drill. And certainly in the marketplace.
certainly with the government officials, with the marketplace, with customers, with prospects. We have to be responsible and accountable to each other to conduct ourselves in a way that's honorable and that builds trust and attracts people to who we are. That's what we mean by that one. And then I'll go to personal worth. The beauty of the Amway business is that it's available to everybody. Everybody. One of the drives that Dad and Jay had in the early days of global expansion was because they thought this opportunity should be shared with people all over the world. And in fact, they would tell us the story of a consultant that they had pretty in the early years of the business who looked at the business and said, you want to be careful about who you sponsor. You don't want to just sponsor anybody. Right? You got to be careful about that. You might want to, you want to make sure that they have some, education. They got to have a good education, right? And then they got to have some sales experience, and they should have, presentation skills, because that's who you really want to sponsor, right? Those are the people. You don't want to just let anybody in here. And Dad and Jay fired him. They fired him. They got rid of him, right? Because they had a simple question that he couldn't answer. He said, who do you want to leave out? We don't want to leave anybody out. We want to have everybody in. We want to create an environment where everybody is welcome. It doesn't matter what you look like. It doesn't matter where you come from. It doesn't matter what you've done in the past. We want you to come in here. We want you to have an opportunity to be successful. We want to give you a chance on your own merit, by your work, to do something and be successful, and we'll help you. And that applies to everybody. So many people in the world want to divide us up. They want to put us in different classes. They want to put us in different background. They want to try to find ways, age brackets and, all the different divisions that they want to, create. So I guess sometimes you're going to market to this group, and we got this group over here and that. Okay. But that's not Amway. Amway is available to everybody, because we believe in the value of everybody, that everyone is created special. And there's nothing I can do to make you better, and there's nothing I can do to make you worse. You are who you are, and you have value because of who you are, and we believe in you just because of who you are. And that's an idea that was from the very beginning. So whenever we're talking to people, understand the value that every person brings and the potential that they have with it. Well, I'm going to finish on integrity. And I want to finish on that because those are the things that we all do when we do the right thing, even when nobody's looking. And when you fail at integrity, that's when trust is broken. That's when trust gets broken. And I want to acknowledge that there's times in our past where we've failed. Whether it's in this market or in other markets, we've had some failures as a company. And we acknowledge that. But failing doesn't mean you're done. Failing always means you have a chance to get it right. And we want to talk about this, and we want to build in our culture so powerfully and so strongly that we don't ever have to talk about these sorts of failures again. Whether it's in the company or if it's in the field. As I said, Rajneesh talked about people we had to move out of the business because of their
actions. This is one of the most impactful, personal, relational issues. Can I count on you? Can I trust you? Can I work with you? Do you understand me? Will you listen to me? Do you hear what I'm talking about? All those elements are connected with integrity. It's not just that you did the audit and the audit came back clean. It's how we go about living our lives. One of the things people would always ask about Dad and Jay, it's like, what are they like at home? You know, I see them on the stage, or I see them in in all these other forums. What are they like at home? I said, they're the same. It's not that exciting. Nothing's different. All these ideas that we're talking about today, that they shared with us and with all of you, were because they lived it every day. They lived it every day. So as I kind of bring this together, I'll get back to that point. Sometimes, Rich and Jay were asked, wow, you had great vision. You must have had great vision, to think of all this. What's this global business that has happened around the world, all the people that have been part of it, all the things that have happened, what vision? And they said, no. We had dreams, we had aspirations, we had goals. But what we did was we went to work every day. We lived our life like this every day, right? And we knew that if we would just do it day in, day out, the simple things, the not real complicated things, the not real fancy things to talk about, but the simple things, every day, do it right, make a mistake, learn, do it right the next time, learn, get better, every day. And then they were blessed to see what happened and resulted from that. And I think that's where I want to kind of bring us back together here. There's not one moment in time, or there's not one product launch, or there's not one speech that's going to be given, or there's not one of anything that's going to all of a sudden, boom, everything changed. It's going to be the work that we do every day. It's going to be the applications of the Founders Fundamentals, these values in our lives and in our work every day. And it's the actions that we take working together with people in this business every day, step by step, day by day, that are going to get us to reach the potential we're dreaming of and that we're talking about. That's what's going to do it. And so we're at a time where we wanted to, and I wanted to kind of share that Amway's Amway. We're still Amway. No matter what people say around us or on the outside, and they want to describe us one way or another, we define who we are. We define what Amway means. We define our relationships and our future. We're the ones who are going to do the work together. All of us, all of your teams, all of your groups, all of us in this business, all around the world, we're the ones who are going to do the work together. Right? And we're the ones who are going to keep dreaming big, step by step, day by day. And I want to encourage you to make these values and these Founders Fundamentals as real in your life as I've seen reflected in mine. And I've tried to make them real in my life as well. Because then we know who we are,
and what we're trying to do together. And when we make mistakes, we're going to hug each other, we're going to lift each other up, and we're going to find solutions, and we're going to keep moving forward. So I want to just close with my sense of appreciation and thankfulness for each and every one of you, the leadership that you have exhibited. Amway India is here today because of your work and your desire, your determination, your commitment. That's why we're here, even with the challenges that we faced around. That's why we have what we have. And we have a foundation with these ideas and with your hard work together. We have a foundation that will truly allow us to realize the full opportunity and the full potential of this market and each and every one of us in this room and in this business as we go forward and as we go forward together. So thank you for all that you do. Thanks for letting me share some thoughts. We love you, and we'll look forward to being with you here in a little bit together. Thanks, everybody. Happy good morning all of you, my dear friends. और आज का जो टॉक हम लोगों ने सुना वो हमारे कहना चाहिए कि फ्यूचर के लिए क्या बदलाव हमें करने हैं और क्या हो रहे हैं उस पर पूरी निगाह डालता है। मैं आपसे पहले बात कर चुकी हूँ, लेकिन मैं अपना परिचय दे दूं फिर से। मैं ममता पांडे हूँ, लखनऊ से आज से अब जुड़ी हुई हूँ, और मैं और मेरी पूरी फैमिली इस बिजनेस को बहुत ही पैशन के साथ में कर रहे हैं। क्योंकि इस बिजनेस में जैसे उन्होंने बताया ना कि जब 4 फंडामेंटल की बात होती है, फैमिली, फ्रीडम, होप एंड अवार्ड, सारा कुछ उन्होंने इसी में समेटा था। पूरी उनकी टॉक इसी आइडिया पे थी। उनका ना इतना बढ़िया आइडिया, मुझे तो लगता है कि सचमुच कहाँ और सुनने को मिलता है कि आपकी फैमिली के लिए जो करता है बिजनेस, निश्चित तौर से हमें करना पड़ता है, वो करना भी पड़ेगा, हमेशा करते हैं। तो वो चीजें तो हैं, लेकिन कितना कुछ देता है, करते कितना है और मिलता कितना है। और उस फ्रीडम को पाने के लिए जो भी हम करते हैं उसमें होप भी है, और फिर लास्ट में रिवार्ड तो मिलते ही मिलते हैं। कहीं भी हम कोई मेहनत करते हैं तो उसमें रिवार्ड तो मिलना ही मिलना तय है ही। तो सारी उनकी जो टॉक थी, मैं इंग्लिश मीडियम की पढ़ी नहीं हूँ, मैं आपसे बता दूं, क्योंकि कुछ हो सकता है मुझसे कुछ गलत हो जाए तो आप लोग सुधार सकते हैं उसको। तो मैंने जितना इसमें कैच किया है उतना मैंने 3 बार इसको सुना है, अभी और सुनूंगी 3 बार, तब मैं पूरी तरह से इसको एब्जॉर्ब कर दूँ। ये सच्चाई है। तो ये चीजें जो मैंने इसमें से ली कि आप क्या करते हैं इस बिजनेस में, हेल्प करते हैं लोगों की, उनकी अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए। और ये भाव अगर हम आते हैं, हमारे अंदर आता है, तो किसी भी अच्छी, कहना चाहिए, सत्संग से कम तो नहीं है। आपके अंदर ये मानवता की भावना आ जाए कि किसी की मदद करके इसकी लाइफ को चेंज करना है, तो आपकी लाइफ तो सुधरनी सुधरनी, वो तो भगवान बैठा है आपके लिए करने के लिए। तो एक सबसे पहला इन्होंने जब बात की तो उसमें ये चीज आई थी। फिर उन्होंने एक चीज और की जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि पर्सनल फ्रीडम और इकोनॉमिक फ्रीडम, जब वो फ्रीडम, फैमिली, होप एंड रिवार्ड की बात कर रहे थे, तो तभी उन्होंने कहा कि ये दोनों अलग नहीं है। आपकी पर्सनल फ्रीडम आपके इकोनॉमिक फ्रीडम से जुड़ी हुई है, दोनों टुगेदर है। क्योंकि अगर एक नहीं होगी तो दूसरे का कोई मतलब ही नहीं है। कैसे हो सकती, नहीं हो सकती। और ये हम सब लोग महसूस कर सकते हैं आपकी आम जिंदगी में, अपने रोज की जिंदगी में इसको महसूस कर सकते हैं। आपका फाइनेंस बढ़िया है, आपकी पर्सनल ग्रोथ बढ़िया है, तो फिर आपका बहुत कुछ अच्छा है, बहुत सी चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं। आपका एक स्टेटस भी होता है, आपका एक, कहना चाहिए, मान सम्मान भी हो सकता है, बहुत सी चीजें हो सकती है, आपका एक सुकून भी हो सकता है। मैं उसी को अच्छा मानती हूँ। ये सब दोनों अगर चीजें सही हैं तो आपकी शांति, आपका विश्वास, आपका हर चीज बेहतर हो जाती है। तो एक हैंड रेज हुआ है, मैं बुलाती हूँ मिस्टर पांडे को पहले, फिर मैं थोड़ी थोड़ी बात तो करूंगी। मिस्टर पांडे, मोस्ट वेलकम।
Good morning and happy good morning, everyone. I am S.C. Pandey, ex-IPS from लखनऊ. आज की टॉक में ग्लोबल लीडरशिप ने हमारे इंडिया की टॉप लीडरशिप को एड्रेस किया और पॉइंट वाइज सारी चीज़ें बताई. क्या इस बिजनेस में क्या क्या चीज़ें ब्यूटीफुल हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें आगे और हो रही हैं और किस तरह से लोगों की लाइफ को चेंज करके ये उनको जीवन में हर तरह की सुविधाएं और सुख दे सकता है. और अब के सिनेरियो में उन्होंने बताया कि फिर चीज़ों को उस हिसाब से मैनेज करके फिर डेवलप किया जा रहा है ताकि वो चीज़ें फ्यूचर में बड़े सक्सेस के जोन दिखा सकें. अभी जैसे उन्होंने बताया कि एमवे ने गुरुकुल से फिजिकल मीटिंग शुरू कर दी हैं. फिजिकल मीटिंग्स हर महीने होती हैं काफ़ी शहरों में, लखनऊ में भी होती हैं. और रजनीश जी ने बताया कि वो अब बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार भी शुरू हो रहे हैं, मई जून से शुरू होंगे. उस बीबीएस के लिए क्राइटेरिया इन्होंने ये रखा है कि टिकट का कोई पैसा तो नहीं है, लेकिन उन्होंने ये रखा है कि 100 पीवी का जो सामान परचेज करेगा अप्रैल में, उसको 2 पास मिलेंगे अपने या अपने कस्टमर के ऊपर, और उस पास से फिर वो बीबीएस को अटेंड कर सकता है. तो इस तरह से ये सारे चेंजेस हो रहे हैं. और उन्होंने तो एक तो बीच में स्पीकर थे, उन्होंने ये भी कहा कि उन लोगों की प्लानिंग है कि इंडिया के हर स्टेट से एक क्राउन बने, और जब हर स्टेट में क्राउन बनेगा तो आप सोचिए कितना बड़ा डेवलपमेंट होगा. और उन्होंने कहा वो क्राउन आप भी हो सकते हैं. हौसले की बात है, डिसीजन की बात है, काम करने की बात है, लोगों से लगातार टच में रहने की बात है, और उसके बाद सारे सिस्टम, सारी गाइडेंस, सारा सपोर्ट कंपनी की तरफ से सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है. केवल आपको अपने आप को उसमें इमोशनली और डीपली इन्वॉल्व कर लेना है ताकि उसमें आपको सक्सेस मिल सके. तो इसमें सारे स्पीकर्स हैं और लास्ट में हमारे जो इसके चेयरपर्सन हैं डॉक्टर डिवोर्स जी ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया कि किस तरह से ग्लोबल सिनेरियो में एमबे का बिजनेस भी, इंडिया का एमबे का बिजनेस भी बहुत बड़े लेवल पर जाने वाला है. तो आप सब भी इसके पार्ट हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं. वेरी नाइस सिटी, वेरी इमोशनल. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. और एक चीज और उन्होंने कही थी अपने टॉक में कि कोई परफेक्ट नहीं है, उसको परफेक्ट बनाने की कोशिश भी नहीं करनी है हमें, और उसको सिर्फ विश्वास दिलाना है. और ये विश्वास जब मजबूत होता है तो बहुत सी चीजें अपने आप आसान हो जाती हैं. तो अब चलते हैं ज्योति रंजन जी के पास में. मोस्ट वेलकम सर. तो धन्यवाद ममता मैम. नमस्कार सभी को. मैं ज्योति रंजन मुंबई से हेड एचआर की पोजीशन पे नौकरी करता हूँ और उसके साथ पार्ट टाइम में टीम के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ. जितनी भी बातें इस स्टॉक में, जितनी भी बातें मिस्टर डग डेवॉस ने जो बताई, उसमें से कोई ऐसा चीज नहीं जो हमारे लिए मिस करने लायक है या लेस इंपॉर्टेंट है. ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एवरीथिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट. एक पॉइंट जहां पे उन्होंने बताया कि ट्रस्ट के बारे में बात करी, और उन्होंने बताया रिच डिवोर्स एंड जे वैन एंडल दोनों के बारे में कि जब एक ने कोई एक्शन लिया और इन्होंने उसको अग्री के सपोर्ट किया इवन व्हेन ही वाज रॉन्ग, और ये दोनों तरह की बात उन्होंने बताई. एंड जैसा वो बताया कि विद अ स्माइल, ये चीज हमारे लाइफ में हम लोग नहीं होता है. जहां पर भी वो थोड़ा सा भी अगर लग जाता है तो हम तुरंत से ट्रस्ट ब्रेक करने वाली बात हो जाती है. हम फिर आगे बढ़ने से अपने आप को रोकते हैं. सो वैल्यू सिस्टम जिस तरीके से इस बिजनेस में हम सबको मिल रहा है, ये कह पाना ही मुश्किल है कि मतलब ये हम यहाँ पे वैल्यू सिस्टम के लिए आए हैं या बिजनेस के लिए आए हैं या हेल्थ के लिए आए हैं. इट्स एवरीथिंग, पूरी पैकेज है. और जितना हम इस चीज को और डीप में जानते जाते हैं, समझ पाते हैं कि वाई दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन. इनफैक्ट एक पॉइंट उन्होंने ये भी कहा था, जो कंसल्टेंट का उन्होंने एक बताया कि
वो कंसल्टेंट ये कह रहे थे कि किसको इस बिजनेस को नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले उन्होंने कंसल्टेंट को ही निकाल दिया, क्योंकि ये बिजनेस सभी के लिए है। थैंक यू सो मच, एंड आई एम ब्लेस्ड कि मैं इस बिजनेस में हूँ। आई एम ब्लेस्ड कि मैं आप सबों के साथ हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ज्योति रंजन जी, और थैंक यू सो मच गॉड कि हम सब लोग इस बिजनेस में, केवल आप नहीं, हम सब लोग इस बिजनेस में है कि इतनी सारी वैल्यूज मिलती हैं इस बिजनेस में, तो शायद आम जिंदगी में नहीं मिल सकती। तो मैं जब ये चीज सोचती हूँ और तो मेरा रोया खड़ा हो जाता है एकदम से कि वाकई ये कितना अद्भुत है बिजनेस, कि यहाँ पे कितने अच्छी लोगों के साथ है, इतनी बड़ी सोसाइटी और इतने बड़े बिजनेस की कल्पना हम लोग कहाँ कर सकते थे। तो अब एक चीज और उन्होंने जो कही थी, बिलीफ और बिहेवियर की बात जब करें, कि जब आपका बिलीफ मजबूत होता है, आपका बिहेवियर बढ़िया होता है और एक्शन भी बढ़िया हो जाता है, उसी पे से जुड़ा हुआ एक्शन होता है। तो बिलीफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चलते हैं डॉक्टर द्विवेदी के पास में। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू ममता मैम, थैंक यू वेरी मच। आज की जो टॉक है हम लोग ने उस दिन भी सुनी थी, और फ्रीडम, फैमिली, होप, रिवॉर्ड्स, ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल वर्थ, मतलब उन्होंने कहा कि जो हम फाउंडर्स फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, अगर इसको हम रोज अप्लाई करेंगे तो सक्सेस मिलेगा। मतलब इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं, सामान बेच के सक्सेसफुल नहीं हो सकते। यू हैव टू अप्लाई द फाउंडर्स के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, जहाँ वो फ्रीडम की बात करते हैं कि पर्सनल इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करते हैं ना, जहाँ वो फैमिली की बात करते हैं कि फैमिली के साथ आपके एक ऐसा रिलेशनशिप, ये हम फैमिलीज जुड़ते हैं। होप, यू हैव होप टू डू समथिंग इन लाइफ, एंड रिवॉर्ड्स फॉर रिकग्निशन व्हाट वी गेट हियर। जो आपके जो आपने जो 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 मेहनत की है, आपने जो 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 कुछ किया है, उसके लिए जो रिवॉर्ड्स यहाँ रिकग्निशन मिलता है वो, और फिर ये सब तभी मिलेगा जब आप में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ट्रस्ट होगा, पर्सनल आप वर्थ होगी आप। सो ये बहुत ही जबरदस्त आज की टॉक थी, और इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है एवरी डे। थैंक यू मैम, बैक टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और मुझे इसी बिलीफ पे एक चीज याद आ गई, कल दीपशिखा जी ने कहा था ना कि उनका एक फ्रेंड के साथ में जो रिलेशन था, जिसकी बदौलत उन्होंने उतना उनको दे सकी, उनको वैल्यूज दे सकी। प्रोडक्ट की बात ही नहीं है कि आपने उसकी उनकी कुछ मदद कर सके। तो मुझे याद आता है कि मैंने भी अभी किसी से बात की, एक यंग लेडी से बात हुई जो थोड़े प्रोडक्ट यूज करती है, जिम ज्वाइन कर ली। मैंने उनको गट रिसेट भी करवाया था, सब करवाया था, लेकिन कहले वो हो नहीं पा रहा है, तो मैंने जिम ज्वाइन कर लिया रेगुलर होने के लिए। अब वो जिम ज्वाइन करने के बाद आज की डेट में उनको हो गए 3-4 महीने, लेकिन अब बड़ी बोरियत होती है उसमें, वही डंबल फंबल करवाते रहते हैं, मुझे बॉडी बिल्डिंग तो करनी नहीं है। तो अब वो उसी स्थिति में आ गई कि नहीं नहीं, वो घर वाला ही अच्छा है, आप जो करवाते थे वही अच्छा है। तो हमने कहा वही करना है, क्योंकि हमें अपनी बॉडी को फिट रखना है। अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है तो ठीक है, उसको भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर हमें अपनी बॉडी को फिट रखना है तो इतना इनफ है कि आप 30 मिनट का वर्कआउट कर ले और घर में कर ले, अपना चूज कर ले उसको, और आराम से बदल बदल के करते रहे, सही ढंग से करें, इसको ध्यान में रखें। तो वो इसके लिए तैयार हो गई फिर से। तो ये मेरा मानना है कि उस विश्वास को डेवलप होने में भले ही टाइम लगे, लेकिन वो काम करता है, और एक बार जब बन जाता है तो फिर वो लाइफ टाइम के लिए रहता भी है। तो आप चलते हैं मुकेश जी के पास में। मोस्ट वेलकम मुकेश जी। ओके मैम, थैंक यू और गुड मॉर्निंग। आप सब हैप्पी गुड मॉर्निंग। रियली आज की सीडी बहुत ही जबरदस्त थी, और जैसे मैंने पहले बोला कि हमें इससे पहले और हमने 3 बार सुन चुके, तो हमने भी इससे दूसरी बार इसको जितना जब हम सुनेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा, और एक एक वर्ड हमें समझ में आएगा। एक वर्ड पे मैं खास बोलूंगा, हेल्पिंग। हेल्पिंग वर्ड से आता है कि हमें अपने इस बिजनेस लोगों को हम पर्पज से आना चाहिए कि उन लोगों को मदद करें। एक या तो उसको बेटर हेल्थ के लिए मदद करें, या सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग में उसको मदद करें। तो इस मदद से मैं इस बिजनेस में कर रहा हूँ। कल जस्ट मैं किसी को प्रोडक्ट देने की आवाज, तो वहाँ पे उनको प्रोडक्ट, उनकी वाइफ को प्रोडक्ट दिया, हस्बैंड जस्ट ऑफिस से आए थे, जस्ट मिले थे, मैं बाहर ही खड़ा था। तो वो आए बोले कि हेलो, मैं दे दिया, हेलो हाय कैसे, बात करें। फिर उनको जस्ट ये हुआ कि मेरा बाइक मतलब कहीं छूट गया था, तो जस्ट मैं हेल्पिंग बोला कि चलो कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ ना आपके साथ।
कहता है नहीं मुकेश जी आप मत जाओ, आप क्यों जा रहे हो, आप अपना काम कर लो। हमने कोई बात नहीं सब, मैं आपके साथ हेल्प चल। तो मैं उनके साथ गया, बाइक पिकअप कराया उनका, पिकअप करा के फिर उनको छोड़ दिया। फिर मुझे अचानक मुझे मतलब वहां से बोला कि आप मेरे लिए जा रहे हो या मतलब किसी अपने काम के लिए जा रहे हो। हमने कोई बात नहीं, मैं समझो कि मैं अपने काम के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। तो गया वहां पे, तब तक वहां जैसे उनको ड्रॉप किया, एक बंदा वो ऑलरेडी मेरा प्रीवियस बिजनेस में ऑलरेडी कस्टमर, ठीक। तो वो बोला कि भाई साहब कैसे हो, काफी दिन बाद में बोले आज मेरे घर पे चलते हैं। हम लोग कोई बात है चलो चलते हैं। और वो मेरा अच्छा कस्टमर था और मेरे मतलब नियर अबाउट गाँव, मतलब गांव का है, विद इन 1 किलोमीटर के अंदर का था बता। गया वहां पे बैठा, हेलो हाय, बोला कि आप आजकल क्या चल रहा है, क्या आप कर रहे हो, पहले तो आप इस बिजनेस का भी आप क्या कर रहे हो। बोले कि मैंने बता, तो अब मुझे भी बता, मुझे भी कुछ करना है बोले। तो वो बंदा इतना इंटरेस्टेड हुआ और उस समय मेरे पास कुछ प्रोडक्ट भी लिस्टर था और एक दो प्रोडक्ट भी। बोला कि "ये मुझे कुछ प्रोडक्ट दिखाओ, मुझे बताओ, मुझे भी करना है।" और उन्होंने ग्लिस्टर लिया और ग्लिस्टर का प्लान भी मैंने दिखाया और वो आज इस मीटिंग में भी है, अभी इस मीटिंग में भी है। तो कहने का मतलब लोगों को हेल्पिंग पर्पज चलना चाहिए और लोगों को एक दूसरे हमेशा करते रहना चाहिए, ऑटोमेटिक अगर लोग हमें हेल्प करेंगे। एक चीज और मैं बोलूंगा, मैं मेट्रो में सफर करते रहता हूँ, ठीक है। अब जब भी लेडीज हैं तो खासकर उनको मतलब सीट देना वो आता है या सीनियर सीट देना, तो वो लिखा भी जाता है, लेकिन हाँ, अपने आप को बनता है कि चलो या एजेड। तो ये भी मैं देखता हूँ कि जब मैं अपने वाइफ के यहाँ जाता हूँ या सच में फादर मम्मी के साथ, ऑटोमेटिक वहाँ पे सीट मिल जाता है। तो कहने का मतलब अगर मैं हेल्प करता हूँ तो ऑटोमेटिक हमें रिवर्स मिल जाता है। तो ये पे मैंने कल का एक्सपीरियंस और टेक है। थैंक यू, बैक। थैंक यू मुकेश जी। और एक चीज और उन्होंने जब कही थी कि ये भी अच्छी लगी मुझे। अच्छी क्या लगी, इसको तो करना ही करना है, रोज करिए और अपनी गलतियों को ध्यान में मत रखिए। मिस्टेक तो होगी, मिस्टेक तो होना स्वाभाविक है, लेकिन उस मिस्टेक को ना देखते हुए करते रहिए, मिस्टेक को सुधरते रहिए, या वो सुधरती रहेंगी। अगर आप सही ढंग से कर रहे हैं तो वो सुधरती रहेंगी। और ये जरूरी कितना है कि आप अगर नहीं करते हो तो वो एक दिन का जो गैप क्रिएट होता है, तो गैप एक दिन का नहीं होता। ये हमारे लीडर्स बहुत कहते हैं कि वो एक दिन का गैप नहीं है, वो बहुत लंबा गैप होता है। ये मैंने महसूस किया है कि अगर एक दिन भी कुछ मिस होता है तो इसके मतलब हम कहीं पीछे जा रहे हैं। तो आप चलते हैं मिस्टर सानिया के पास में, और मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम राजेंद्र सयाना है और मैं चीफ इंजीनियर के पद पे अल्मोड़ा में पोस्टेड हूँ। और बहुत जबरदस्त टॉक थी डग डिवॉस की। पहले भी हमने सुना, लाइव भी सुना जब उनकी टॉक चल रही थी। कितनी जबरदस्त जो फंडामेंटल के ऊपर बात की है ना। देखिए, फैमिली, फ्रीडम, होप एंड रिवॉर्ड, बार बार इसकी बात की जाती है। और ये बिजनेस इसीलिए यूनिक है दोस्तों की, इसीलिए ये जो है सबसे अलग बिजनेस है। यही इसको बिल्कुल डिफरेंट बनाती है। अगर इस बिजनेस के अंदर केवल नेटवर्क करना होता या साबुन बेचना होता या प्रोडक्ट बेचना होता तो शायद इस बिजनेस के अंदर मतलब हमें हमारे करने की इच्छा नहीं होती। मतलब अगर इस बिजनेस में हम लोग जो डेली सीख रहे हैं, जो अपना फंडामेंटल को जो है हम लोग हमेशा जो है उस पर काम करते हैं और एक्शन लेते हैं, जैसे डग डिवोस जी ने बताया ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब फॉर आवर एक्शंस है ना। हमारा रोज का जो एक्शन है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस बिजनेस के अंदर। अगर हम उसको करते हैं तो डेली हम लोग उसको अचीव करने की ओर जो है बढ़ते हैं, अपने गोल की तरफ बढ़ते हैं। यस, कल की एक्टिविटी बताऊंगा कि कल भी मैंने 2 कंज्यूमर रजिस्टर किए और बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। हम देखिए कितनी टॉक चल रही है, हम डेली मॉर्निंग में रखल है। हाँ, जो हेल्थ टॉक है वो हेल्थ टॉक को तो हम ऐसा यूज कर रहे हैं आज के डेट में, जो है हम हेल्थ एक्सपर्ट है नहीं, लेकिन हम उनको टॉक दे देते हैं और फिर लोगों की प्रोडक्ट की डिमांड आती है ना। जस्ट जैसे लोगों की कुछ चीज हो रहती है तो हम कहते हैं ठीक है, आप ऐसा ऐसा है तो ठीक है, आप इसको सुनिए, फिर बात करते हैं। तो बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स है लोगों का। ऐसा नहीं आज एमवे बहुत डिफरेंट हो गया। ये जो H2O है ना, हेल्थ टू अपॉर्चुनिटी है, इससे तो सारा बिजनेस का सिनेरियो चेंज हो गया। और देखिए बहुत बड़ा चेंजेस होने वाला है डेफिनेटली। हम लोग डेली अपने अंदर चेंजेस कर रहे हैं और ये सबसे ब्यूटीफुल है। थैंक यू, बैक टू होस्ट। जबरदस्त। थैंक यू सान्या जी। और आप चलते हैं मिस्टर अतुल सक्सेना जी के पास में। थैंक यू ममता मैम। नमस्कार सभी को। नाम अतुल सक्सेना, देहरादून से हूँ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में IT प्रोफेशनल हूँ। और जो मुझे अपने लिए समझ में आया कि
जो उन्होंने कहा कि दिस बिजनेस इज नॉट जस्ट द ट्रांजैक्शंस, है ना। मतलब ये कोई केवल लेन देन का वो नहीं है कि हम गए, हमने उसको कुछ बताया, कुछ प्रोडक्ट हो गए, कुछ ये चीजें हो गई और ये बिजनेस हमारा जो है आगे बढ़ रहा है, कुछ हमें चीजें मिल रही हैं और लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, है ना। मतलब ये समझ में आता है कि दिस बिजनेस कैन शेप पीपल्स लाइफ इन मैनी डायमेंशंस। मतलब फाइनेंशियल भी हो सकता, फाइनेंशियल भी है, और हेल्थ भी है, फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, और मतलब ओवरऑल वेलबींग के ऊपर ये बिजनेस काम करता है। अब मेन चीज क्या है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है, अब हम इसको कैसे समझ रहे हैं, कैसे, जैसे जिस कन्विक्शन और जिसके साथ फाउंडर्स बात करते हैं, क्या वो फीलिंग, मतलब उसकी 10-20% फीलिंग भी हमारे दिमाग में वो बैठ पाती है। क्योंकि हमने इसको 23-24 मार्च को जब ये लाइव हुआ था तब भी सुना था, और कई बार पर्सनल लेवल पे भी सुना है, उसके बाद आज फिर से सुना है। तो क्या वो प्रिंसिपल्स, क्या वो जो एक एथिकल वैल्यूज हैं, क्या वो जो लोगों की लाइफ को ये चेंज कर सकता है, और क्या मतलब एक समाज में धीरे 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 करके हम एक बदलाव ला सकते हैं और एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो क्या हम वैसे करके इसको किसी को बता रहे हैं? हम मतलब हम जब हम बताते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या रिप्रेजेंट करती है, हमारे शब्द क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो मैं अपने लिए मानता हूँ कि मुझे इस चीज को ही थोड़ा सा और अपग्रेड करने की जरूरत है, कि क्योंकि लोगों ने सबने सब कुछ सुना हुआ है, तो बहुत तरह की बातें हम सीख रहे हैं, रोज सीख रहे हैं, रोज काम कर रहे हैं, रोज रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीजें मिसिंग कभी लगती है। कि पहले अगर हम क्या बोलें, अगर हम एमवे कोई बोल दें या हम बोल दें, तो क्या सामने वाले का रिस्पॉन्स होगा। तो मैं थोड़ा सा उसको भी करेक्ट करने की अपने लेवल पे कोशिश कर रहा हूँ, कि अगर पहला शब्द भी कोई ये कहता है कि सर ये एमवे है क्या, तो फिर मुझे क्या करना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे सारी हेल्थ टू अपॉर्चुनिटी सब डामाडोल हो जाता है मेरे दिमाग के अंदर, कि अब मैं इसको क्या करूं, है ना। इसने तो पहले ही मतलब सारा राज खोल दिया, जैसे होता है ना कि जो चीज मैं बताना चाह रहा था वो तो लास्ट में बताता। तो ऐसे काम करने के दौरान मैं क्या एटीट्यूड रख रहा हूँ अपने अंदर, मेरा दिमाग किस लेवल पे क्या चेंज कर रहा है, क्या मैं क्वेश्चन उससे पूछ पा रहा हूँ, और ये फाउंडर्स प्रिंसिपल और ये तमाम चीजों को लेके कैसे मैं बात कर पा रहा हूँ, कैसे रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ एमबे को, और कैसे इस बिजनेस को बता पा रहा हूँ लोग। ये जो है मेरा अपना टेक अवे है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू अतुल जी। और उन्होंने कहा था ना कि यह पार्टनरशिप का जो आइडिया है ना, ये एक रिलेशनशिप से ही रिबिल्ड होता है, ऐसे होता ही नहीं। और रिलेशनशिप में विश्वास की जरूरत है। आप वो विश्वास डालेंगे तब रिलेशनशिप मजबूत होता है। तो दोनों चीजें ये ध्यान में रख के ही चलनी होती हैं हमको। तो आप चलते हैं अपने कैप्टन नलिन सर के पास में। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू ममता मैम। सबको नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर नलिन मिश्रा, सर्जन फ्रॉम प्रयागराज। तो जो नए लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको बता दें कि आज जो स्पीकर थे वो एमवे के फाउंडर्स रिच डिवॉस और उनके एक फ्रेंड जे वैन एंडल, दो फ्रेंड्स ने एमवे की स्थापना की थी। और वो दोस्त ऐसे थे कि उनकी दोस्ती 12-13 साल की उम्र से जब चली तो फिर लाइफ के अंत तक चली। उनके परिवारों में उसी तरह की जबरदस्त फ्रेंडशिप है, और दैट फ्रेंडशिप कन्वर्टेड इनटू बिजनेस पार्टनरशिप। ये बड़ा रेयर फिनोमिना है पूरे वर्ल्ड में, आप ये कहीं दूसरा एग्जाम्पल नहीं पाएंगे। इसलिए जब इस तरह की टॉक सुनते हैं तो जो गर्व है हमारा कि हम एमवे से जुड़े हुए हैं वो और बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ जाता है। तो उनके रिच डिवॉस के बेटे हैं डग डिवॉस, और जे वैन एंडल के बेटे स्टीव वैन एंडल है। इन दोनों की पार्टनरशिप उसी तरह से चल रही है जैसे इनके फादर के बीच में चल रही थी। दिस इज अनदर वेरी वेरी रेयर फिनोमिना कि हमारे पिताओं के बीच जो पार्टनरशिप थी वो हमारे बीच भी चली। ये भी नहीं होता है, दो भाइयों के बीच पार्टनरशिप नहीं चलती है दुनिया में, आप देखिए। और ये क्यों चली? क्योंकि एक चीज उन्होंने कही ना, ट्रस्ट एंड सपोर्ट इवन व्हेन ही वाज रॉन्ग। इनकी बहुत सी किताबें जब आप पढ़ेंगे तो किस ढंग से ये लोग काम करते थे। तो ये दोनों तो हेड्स थे। जो एम्प्लॉयज होते हैं उनका काम होता है कि किसी तरह इनकी बात उनसे करी जाए, उनकी बात उनसे, बड़ा कॉमन है ये इंसानों में। तो यही प्रिंसिपल हमेशा, कि अगर उन्होंने कहा है तो ये सही ही होगा। कई बार ऐसे इंस्टांसेस थे कि दोनों मित्रों में से एक ने डिसीजन लिया, दूसरे से कम्युनिकेट नहीं किया, बट जब उनको किसी एम्प्लॉयज के थ्रू पता चला तो ये नहीं हुआ कि देवर एनॉयड कि मुझे क्यों नहीं बताया, ये सब कुछ नहीं। हमेशा उन्होंने कहा कि अगर उसने ये डिसीजन लिया है तो ये सही ही होगा, ये सच ही होगा। और ये तो एक हिस्टोरिकल टॉक है। ऐसे समय में ये टॉक आई है जब पिछले 6-7 साल एमवे के लिए कठिनाइयों से गुजरे हैं। जो पुराने लोग हैं सब जानते हैं
गवर्नमेंट के साथ जो डीलिंग्स थी, फिर उसके बाद कोविड आया, और उसके बाद ये टॉक जो रिसर्जेंस की है कि अब यहाँ से एमवे कहाँ जा रही है, उस मामले में आप देखेंगे दिस टॉक विल बी रिगार्डेड एज वन ऑफ द हिस्टोरिकल टॉक्स। और एमवे बिजनेस की खास बात क्या है? एमवे बिजनेस की खास बात इसका प्लान है। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान एमवे के मुकाबले ठहर ही नहीं सकता। जिस तरह से इसमें आपका जो एफर्ट है, उसका जो रिवॉर्ड है, उसका जो ऑनेस्ट तरीका है, आप ये देखो, कई बार लोग सोचते हैं कि हम आ गए और हमने नीचे लोगों को स्पॉन्सर कर दिया, अब हम काम नहीं करें, वो सब काम करेंगे तो हम पैसे कमाएंगे। ऐसा होता ही नहीं है इस बिजनेस। किसी भी लेवल पर आप चले जाएं, आपको अगर नेक्स्ट लेवल की इनकम चाहिए तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है, कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। एलओएसएस शिफ्ट नहीं होती है एमवे में, यहाँ से निकाल के इनको वहां बिठा दो। किसी को बिजनेस छोड़ना भी है, आपको आपका अपलाइन पसंद नहीं है, तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा, 6 महीना इनएक्टिव रहना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कहीं और ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें देखिए दोनों चीजें हैं। ऐसा भी नहीं कि अगर आपको पसंद नहीं है आपका अपलाइन तो फिर आप डाइवोर्स नहीं कर सकते, कर सकते हैं बट विद कंडीशन। अपनी टीम को आप लेके जाना चाहेंगे तो 2 साल वेट करना पड़ेगा। दैट टीम हैज टू रिजाइन, हैज टू वेट फॉर 2 इयर्स। तो ये प्लान, जैसे कहते हैं ना हम लोग, ये गॉड्स प्लान है। और इन सब चीजों को जब आप सुनते हैं तो आपको लगता है कि हमारी कुछ पूर्व जन्मों के अच्छे कर्म हमने किए थे जो हम एमवे में आए। और जब इन चीजों को आप जानते हैं तो किसी से बात करने में, जैसे अभी अतुल सक्सेना जी कहते थे ना कि किसी का क्या ये एमवे है, कोई हमसे पूछता है तो मेरे मन में तो ये आता है, मैं बोलता तो बड़े सॉफ्टली हूँ, मेरे मन में ये आता है कि तुमने एमवे को तो अभी कैसे जान सकते हो भाई? 1-2 मीटिंग में आप नहीं जान सकते, हम खुद अभी एमवे को जान रहे हैं। और जब ये टॉक हम लोगों ने सुनी तो हमें पता चला कि डबल डायमंड्स भी टर्मिनेट होते हैं एमवे में। डबल डायमंड के लेवल पर जाकर टर्मिनेशन होते हैं जस्ट बिकॉज आपने रूल्स फॉलो नहीं किए। और उनको टर्मिनेट करने के बाद जो हमारा फाउंडर है, उस फैमिली का एक व्यक्ति, आप उनके इमोशंस देखो कि मतलब हार्ट ब्रेक, इतना जबरदस्त हार्ट ब्रेक है कि इस लेवल पर जाकर इन्होंने इस तरह का काम क्यों किया। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही रेयर है। और उन्होंने बात करी ये पार्टनरशिप की। हमारी पार्टनरशिप हमारे डाउनलाइन अपलाइन के साथ तो ही है, हमारी हमारी पार्टनरशिप एमवे के साथ भी है। एमवे पर जिनको भरोसा नहीं था वो छोड़ गए, हमें भरोसा था, हम आज भी एमवे में हैं। और आप सोच के देखो जो छोड़ के गए उनका क्या है और हमारा क्या है। तो ये जो ट्रस्ट है, इवन व्हेन समथिंग इज रॉन्ग, इसको मेंटेन करना है। हमारी आपस में कुछ भी जरा सी होती है तो अब राइट और रॉन्ग में लग जाते हैं, ट्रस्ट तो चला जाता है कहीं और। बट आप ये देखिए कि ये जो वैल्यूज हैं, ये जो फंडामेंटल्स हैं हमको मिल रहे हैं हमारे फाउंडर से, क्या हम उन्हीं उसी कल्चर को, उन्हीं चीजों को अपनी टीम में हम ला पा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, इस तरह के ये व्यक्ति हैं, आप सबको आई डोंट नो, पता नहीं मालूम है कि नहीं, जो रिच डिवॉर्स, उनका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, और हार्ट ट्रांसप्लांट को जिसने हार्ट दिया वो जीवित है। आप सोचिए, डोनर इज अलाइव। ये बहुत यूनिक लोग के साथ होता है कि किसी का हमने हार्ट लिया, अब डेफिनेट है जिसका हार्ट लोगे वो तो जा चुका होगा ना, बट रिच डिवॉर्स के हार्ट ट्रांसप्लांट का जो डोनर था वो अलाइव था। कैसे अलाइव था? क्योंकि उसको लंग्स का ट्रांसप्लांट होना चाहिए था, और लंग ट्रांसप्लांट में लंग और हार्ट साथ में ट्रांसप्लांट होता है। तो जिस डोनर से लिया गया, और लंग एंड हार्ट उनको लगे, और इनका हार्ट रिच डिवॉर्स को लगा। तो बहुत ही अनोखी चीजें हैं एमवे के साथ, जो कि आप सुनते जाइए, पढ़ते जाइए, तो आपको लगेगा कि किस तरह के लोग थे, किस तरह की कंपनी इन्होंने बनाई, और उस कंपनी के साथ हम जुड़े हुए हैं। कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है। तो थैंक यू ममता मैम, बैक टू। थैंक यू सर, थैंक यू। और एक चीज मुझे याद आती है कि जानना और पहचानना, कहीं से सुना था मैंने, दो अलग चीजें होती हैं। अगर हम किसी को जानते हैं तो वो ऊपरी होता है, लेकिन अगर जब किसी को पहचान लेते हैं तो वो दिल से होता है, भाई हार्ट होता है। और वो पहचान हमारी जिसकी एमवे से अगर हो गई तो वो एमवे छोड़ को तो नहीं जा सकता, सवाल ही नहीं उठता उसका। क्योंकि वो काम करेगा, कब करेगा ये उसकी उसका टाइम है, समय है, लेकिन वो छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा है, यहाँ की वैल्यूज ऐसी हैं कि आप नहीं जा सकते। तो आप चलते हैं अपने मोस्ट वैल्यूबल सर आलोक सर के पास में। वेलकम सर। थैंक यू ममता मैम, जबरदस्त होस्टिंग, जबरदस्त टॉक है ना। और एमवे ने अभी ही 2-3 दिन पहले गुरुकुल में, जो एमवे की वेबसाइट में भी अवेलेबल है, ऐप में भी अवेलेबल है, उसमें अभी
55 मिनट्स की इनकी टॉक डाली है ना, तो उसमें भी जा सकते हैं आप लोग, डाउनलोड कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, राइट। और बिल्कुल जबरदस्त टॉक है ना। देखिए आप समझ रहे होंगे कि जिनका इतना बड़ा बिजनेस है, 7-8 बिलियन डॉलर का, है ना, और वो कितने इमोशनल होके इस बिजनेस को कर रहे हैं, है ना। 65 साल से यदि आप किसी काम को कर रहे होते हैं तो मुझे लगता है वो कंपैशन तो रहता ही नहीं, है ना। आमतौर पे बिजनेस ही दिखता है कि अच्छा कितनी टर्नओवर हो रही है, बस कितना प्रॉफिट हो रहा है, मेरे ख्याल से यही देखते हैं सब लोग किसी भी काम में। और यहाँ पर आप देखेंगे तो दोस्तों ये बहुत ही अलग ही वैल्यूज पे है, दे डोंट वांट बिजनेस ओनली, है ना। एमवेरी सोचते कि मेरे को खाली बिजनेस करना है, तो जितने सारे अमेरिका में प्रोडक्ट है सारे ले आते हैं यहाँ पर, उनके पास तो है ना ऑलरेडी प्रोडक्ट, है ना। लेकिन पूरी स्ट्रेटेजी होती है, सिस्टमेटिक ढंग से होता है, और आप समझ सकते हैं कि हमें तो चैलेंज क्या झेलने पड़ रहे होंगे, है ना। एक एफएसएसआई बीच में आता है और वो बोलता है कि आपका विटामिन सी में आपने इतना नहीं दे सकते, है ना, और वो लॉजिक सुनने को तैयार ही नहीं, है ना। वो सिर्फ अपना बोल रहा है, खाली एक तरफ बस, कि कुछ भी करना है तो यही करना पड़ेगा, नहीं तो कोर्ट में जाओ। आप सोचो आप, है ना। और सबसे बड़ी दिक्कत एमवे के साथ में क्या है, वो ब्राइब नहीं करती, वो है ही नहीं इनके। हम लोग थे उस वाली मीटिंग में, फिजिकली बैठे हुए थे मैं और भाव, जो आप ये मीटिंग देख रहे थे, है ना। ये डायमंड, सारे डायमंड्स को बुलाया गया था, डायमंड सन आपको, है ना। तो उन्होंने बताया कि हमें पता ही नहीं ब्राइब क्या होती है, हम सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन 5 लाख रुपए, मतलब उन्होंने बोला हमको कि हम करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हैं वकील को देके, लेकिन हम ब्राइब नहीं कर सकते 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, वो आता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग सही है ना। और उन्होंने माना कि कुछ कंट्रीज ऐसी है जहां पर हम लोग वैसा नहीं कर पाए जैसा करना चाहिए था, बट हमने छोड़ा नहीं, हम इम्प्रूव कर रहे हैं। अभी आप नई चीज देखेंगे, यदि आपके आसपास में एमवे ऑफिस है तो आप जाके देखिए, रीब्रांडिंग हो रही है ना। क्योंकि बहुत सारे डायमंड्स ने ये बोला था कि आप ये खाली स्मार्ट हेल्थ, आप खाली मॉर्निंग न्यूट्रिशन, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। तो उन्होंने माना, इतना उन्होंने पैसा लगाया था उसमें, सारा हटा रहे, बोले कोई बात नहीं, जैसा आप बोलेंगे वैसे। हेल्थ टू अपॉर्चुनिटी वाला प्लान लेके आए, अब वो बोल रहे हैं अपॉर्चुनिटी विद हेल्थ वाला भी बना रहे हैं plan। मतलब तुरंत तुरंत तुरंत, बिकॉज दे वांट सक्सेस, है ना। उन्हें पता है कि हमारा कितना बड़ा समय लग रहा है, वो इसको जिम्मेदारी से समझ रहे हैं कि कुछ चीजें उन लोगों के कारण से हुई हैं जो लोग गलत तरीके से इस बिजनेस को कर रहे हैं, है ना। तो मैं फिर बोलूंगा दोस्तों कि बहुत अलग लेवल पे, पहले ही बता रहा हूँ आपको मैं, और आज से नहीं बता रहा हूँ मैं, कई महीने हो गए बोलते हुए, कि अभी बिल्कुल अलग ढंग से बिजनेस अलग लेवल पे पहुंचने वाला है, सितंबर से आप देखेंगे, है ना। लेकिन मुद्दा एक ही है कि जब सितंबर आप शुरू करेंगे तो एक टीम के साथ शुरू करेंगे या अकेले शुरू करेंगे, फिर टीम बनाएंगे, मुझे लगता है फिर उतना फायदा नहीं उठा पाएंगे, है ना। तो आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, लास्ट 2 डेज ऑफ द क्लोजिंग, है ना। और आप सबको पता है क्या करना है हम लोगों ने, है ना। और बीबीएसएस आ रही हैं, मई से शुरू हो जाएंगी बीबीएसएस हम लोगों की, है ना। जिन जगहों पे ओपन मीटिंग होती है वहाँ ओपन मीटिंग भी होगी और एक दिन बीबीएस भी होगी, तो उसका भी अभी शेड्यूल आ जाएगा, क्योंकि अभी इनको पता चल जाएगा कि कितने टिकट्स किस किस सिटीज में जरूरत होगी, उस हिसाब से वेन्यूज लिया जाएगा, इसीलिए उस तब पब्लिश करेंगे, है ना। लेकिन मई और जून में जरूर हम सबको बीबीएस देखने का मौका मिलेगा, है ना। और एक नई चीज मैं यहाँ पर अनाउंस कर रहा हूँ, जो अभी कुछ दिन पहले एक किसी सीडी से इंस्पायर होके, है ना, उन्होंने बताया था कि हम एक दिन बनाते हैं जिस दिन हम टीवी डे बोलते हैं, है ना। कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो ऐसी मेरी कुछ लीडर्स से बात हो रही थी और हम लोगों को लगा कि अ, देखिए जो लोग कमिटेड होते हैं ना किसी भी चीज के लिए, तो वो हमेशा तैयार रहते हैं कि हम अलग दिखें, है ना। आप देखते होंगे यहाँ पर भी कुछ लोग हैं जो लगातार हाथ उठाते हैं, दे शो दे शो दैट वी आर डिफरेंट। हम लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं चीजें, क्योंकि हाथ उठाने से कुछ नहीं होता, हाथ उठाने के बाद बोलना पड़ता है ना। और जब हम बोलते हैं तो हमें पता चल जाता है कि क्या समझा हम लोगों ने, है ना। और ये एक बहुत अच्छा तरीका है। हमारे टाइम पे तो बहुत मुश्किल होता था, हमें हमें खाली मीटिंग में जाने से हम उनकी नजरों में नहीं आते थे, हम कुछ ना कुछ करते थे उस टाइम पे, कोई बोर्ड लगा रहा है ना, कोई अपनी सीट किसी को दे रहा है,
कोई गेट पे खड़ा हो जा रहा है कि चलो टिकट मैं फाड़ूंगा, अब देखो जिससे कि वो शो कर सके कि आई एम डिफरेंट, है ना, मैं सर्व करना चाहता हूँ, मैं लीडर हूँ। अब क्या करना है ना, अब लीडर आपको बनना है तो आपको क्या करना है? नेचुरली आपको अपने अपलाइन के साथ में बात करनी है, आपको हर महीने काउंसलिंग करनी है, आपको हर महीने गोल बनाना है, आपको रोज क्या काम कर रहे हैं, रोज कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके अलावा एक नई चीज हम लोग शुरू कर रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे, हमने बचपन से सुना है, जो बिजनेसमैन होते हैं वो बोलते हैं बोनी करनी है ना, सुना होगा हमने बोनी, है ना। तो बोनी का मतलब क्या होता है, पहले तो इसको समझ लेते हैं। देखिए बोनी का मतलब ये नहीं होता है कि मैंने सामान खरीद लिया। बोनी का मतलब होता है कि मैंने जो सामान लिया उसको मैंने उससे प्रॉफिट कमाया, ठीक है। तो पर्पज मेरा क्या होगा बोनी डे का, है ना, हम लोग बोनी डे मनाएंगे मई से। और उसके लिए आपको 3 दिन मिलेंगे, पहले 3 दिन कि आप परचेज करें कुछ ना कुछ, चाहे वो 1 पीवी का सामान हो। बट इंपॉर्टेंट ये नहीं है दोस्तों, फिर मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं माई पर्पज ऑफ बोनी डे इज नॉट कि आप सब लोग परचेज कर लो, और इसीलिए 3 दिन दे रहा है कि आपको कोई ना कोई चीज किसी ना किसी को देनी है और प्रॉफिट कमाना है, तब वो बोनी कंप्लीट होगी, है ना कि खाली ट्रांजेक्शन। क्योंकि मैं चाहता हूं दोस्तों कि अब जब इतने कंफर्ट हो ही गए हम लोगों के पास, किसी चीज में पैसा नहीं लग रहा है, 1 रुपए का पैसा नहीं लग रहा है, तो अब कम से कम बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करेंगे हम लोग तो फिर कैसे होगा? वो 0 0 0 0 अब क्यों होने चाहिए चीजें? पर एटलीस्ट जो कमिटेड लोग, है ना, तो बोनी डे सिर्फ उसके लिए होगा जो बिजनेस कर रहा है, नॉट टू कस्टमर्स, है ना। दे कैन पार्टिसिपेट डेफिनेटली, है ना, क्योंकि आने वाले समय में उनमें से बहुत बार देखा गया है कि जो कस्टमर हमारे अच्छे होते हैं वही कल को आने वाले समय में हमारे बिजनेस ओनर्स भी बन जाते हैं, इवन बड़े बड़े लेवल पे पहुंचे हैं कस्टमर दोस्तों, है ना। जब उन्होंने रिलेशनशिप देखी, जब उन्होंने कमिटमेंट देखा आपका, अभी जैसे मुकेश बता ही रहते हैं ना, एक एग्जांपल दे रहे थे, है ना। तो इस तरीके से, तो मेरे ख्याल से आप सब एग्री करेंगे और एक्साइटेड होंगे इस चीज के लिए कि एवरी मंथ फर्स्ट 3 डेज हमारे जितने भी कमिटेड लोग, बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। देखो हर किसी को अपने ग्रुप में पता है कौन कमिटेड है, तो हमें पूछने की जरूरत ही नहीं, हम सिर्फ देख लेंगे 3 तारीख तक यदि इसने कुछ किया कि नहीं किया, निकाला कि नहीं निकाला, आप तक इन्फॉर्मेशन आई कि नहीं आई, तो आपको बोल, और वो आपको बोल रहा है मैं बहुत कमिटेड हूँ लेकिन वो कर ही नहीं रहा है, बोनी मान लिया, इसका मतलब सीधी सी बात हो गई कि उसको थोड़ा समय और चाहिए, है ना। अभी तो दिक्कत क्या होती थी कि वो बोल रहा होता था और हम मान ले रहे होते थे इसकी बात, लेकिन होता क्या था फिर वो कर नहीं रहा होता, लेकिन वो, मेरे साथ तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं सर इसके अलावा कुछ है ही नहीं मेरे पास, और क्या करूंगा मैं। वो मेरे को कन्विंस कर रहे होते हैं सर देखो मेरे को नहीं करना होता, मैं आके रहा हूँ रोज सुबह, बताओ ये लेकिन कर नहीं रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं तो बता ही रहा हूँ कि कर नहीं रहा है, क्योंकि वो हर जगह पे एक्सक्यूजेज आ जाते हैं उसके, कुछ भी काम बोलोगे एक्सक्यूजेज है, पहले एक्सक्यूजेज है, मतलब आप समझ लो, है ना। हम फिर भी प्यार करते हैं उनको, लेकिन अब इतना एक्सपीरियंस हो गया उनके साथ कि मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं यदि फोन करूंगा और मैं यदि ये पूछूंगा तो ये क्या बोलने वाला है ना। तो मेरे को लगता है कि ये बोनी डे से क्या होगा कि हम सेग्रीगेट कर पाएंगे उन लोगों को जो कमिटेड हैं और जो नाव में विश्वास रखते हैं, जो अभी तैयार है ना। आपने देखा होगा एक टॉक टाइटल किया था हम लोगों ने, मिल गया तो ठीक या चाहिए ही चाहिए, याद है आप लोगों को, है ना। तो जो चाहिए ही चाहिए वाले लोग हैं ना, वो पता चल जाएगा हमको जो पहले 3 दिन में, वो कुछ भी लो, फिर मैं बोल रहा हूँ आपको, है ना। जो सीनियर लीडर है मैं तो बोलूंगा 100 पीवी, 200 पीवी, 300 पीवी, आप पूरे महीने में जितना करते हो उतना ले लो एक बार, कर सकते हो तो यदि, है ना। शायद मैं तो इसी तरह का हूँ, है ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्री हैं। बट पहले 3 दिन में, फिर मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं, सवाल ये नहीं है, मुद्दा ये नहीं कि आप सामान खरीद रहे हो, फिर मैं बता रहा हूँ आपको, मुद्दा ये है कि क्या मैंने कोई प्रॉफिट कमाया, है ना, सो दैट हमारा समय सिर्फ उनके साथ लगे जो एक्चुअल में कमिटेड है, बिकॉज सक्सेस इज नेवर आउट ऑफ लुक, है ना, तुक्का नहीं होता है, लॉटरी है ही नहीं सर, हमारा बिजनेस लॉटरी नहीं है, लॉटरी निकलती है बहुत सारी जगह लेकिन हमारा बिजनेस लॉटरी नहीं, है ना। और जैसे अतुल ने क्वेश्चन पूछा, बहुत जबरदस्त चीज थी, है ना। तो मैं अतुल आपको अभी बस, आप टेलीग्राम में हैं नहीं है तो टेलीग्राम आप डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके मेरे को हाई कीजिएगा, तो मैं आपको कुछ भेज रहा हूँ, भेजूंगा 90 मिनट्स का एक, जिसमें पूरा कैसे आप एक ऐसे व्यक्ति को जिनको आप लिंक्डइन के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट करते हैं तो कैसे उसके साथ कम्युनिकेशन करना है, वो 90 मिनट का एक हमने इंटरेक्शन किया हुआ है, वो मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा, आप देखिए उसको, समझिए क्या है माइंडसेट, असली चीज देखिए, असली चीज यही है
असली चीज यही है कि मेरे को टीम बनानी है और मुझे सिलेक्ट करना है ना। लेकिन ये प्रैक्टिस से आएगा, ये खाली सुनने से नहीं आएगा, है ना। बट क्योंकि आप तैयार हैं, क्योंकि देखो, अब देखो जैसे मैंने बताया, तो आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा यार मेरे को भी मिल जाए तो मजा आ जाएगा, बट उससे फायदा कुछ नहीं होगा दोस्तों। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, यदि आप सबसे पहले काम करना शुरू करो, फिर जब चैलेंज आए फिर आओ हमारे पास। दिक्कत क्या होता है, आदमी सोचता है पहले सब कुछ मिल जाए मेरे को, है ना। मेरे को फुटबॉल का खिलाड़ी बनना है तो मेरे को किट भी मिल जाए, मेरे को जूते भी मिल जाए, अच्छा वाला ग्राउंड भी मिल जाए, ऐसा होता है क्या कभी? अच्छा कोच भी मिल जाए, ऐसा नहीं होता ना यार। कहीं तक तो आपको नंगे पांव ही पहुंचना पड़ता है ना, कहीं तक तो उसी जूते के साथ पहुंचना पड़ता है ना जो जूते पहने में। फिर जाके पता चलता है अरे यार इसके अंदर तो ऐसा, तो सामने से फिर बोलेगा कोई आदमी यार इसको दिलाओ कुछ यार, ये तो अच्छा खेलता है, इसको प्रोफेशनली ले जाओगे। याद है आपको ऐसे ही होता है कि नहीं होता? आईपीएल में देखो ऐसे ही तो हो रहा है। ऐसे ऐसे लोग पता नहीं कहाँ से निकल के आ जा रहा है, एक बंदा जिसको कभी सोचा ही नहीं था, और यदि वो पुराना वाला समय होता तो वो कभी जिंदगी में आता भी नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते थे, 20-25 लोग में ही सालों साल निकल जाते थे। लेकिन अब मौका मिल रहा है लोगों को, है ना, क्योंकि इस तरह के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। तो ऐसे ही मैं बोलूंगा दोस्तों कि पहले आप सब सब कुछ पहले रख लोगे अपने पास, नहीं होगा। अब लोगों ने लाइब्रेरियां बना रखी है, मैं इतना अमेज होता हूँ लोगों को देख के, और हंसी भी आती है बहुत बार कि उन्होंने लाइब्रेरी बना रखी है लेकिन पढ़ते नहीं है वो लोग, है ना। तो मेरे को लगता है कि वेस्टेज ऑफ मनी, है ना। अरे भाई हमें दिखाने के लिए यदि आप खरीद रहे हो, पहले भी ऐसे ही होता था, एसओपी में लोग आ जाते थे, साल साल भर की करा लेते थे, जस्ट टू शो दैट आई एम कमिटेड। तो उससे होगा क्या बताओ ना जरा, उससे कुछ भी नहीं होगा दोस्तों, है ना। तो ऐसे ही इस बिजनेस में है। तो एक चीज याद रखिए, है ना, क्योंकि 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख को हम लोग सब लोग बताएंगे कि मेरी बोनी हो गई, है ना। जो भी हम बोलेंगे 1 2 3 में, तो मैसेजेस ये भी होंगे कि मेरी हो गई है, कितना हो गया, क्या हो गया, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ देखो, कुछ ना कुछ चेंज करते रहना पड़ता है, जिससे एक्साइटमेंट आए, जिससे कुछ एक अलग तरह की चीज ऊर्जा आए हमारे अंदर, इसीलिए ये लाया जा रहा है, राइट। और बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त विजन कंपनी का, हमें पता है कि कंपनी क्या करने जा रही है ना। अब देखो, मैं बोलता था तो डेफिनेटली ये था कि यार ये लीडर हैं, अपने ग्रुप से बात कर रहे हैं तो एक्साइटेड मोटिवेट कर रहे होंगे। अब आपने उनके अपने मुंह से सुन लिया, है ना, क्या उनका विजन है, किस तरह से वो लोग आए, है ना, फ्लाई करके आए, अपने साथ 3-4 और लोगों को लेके आए, मतलब पूरा एमवे का हेडक्वार्टर का जो मेन था वो सब आ रखा है ना। तो क्यों आए होंगे सोच के देखो, इसलिए क्योंकि अब कुछ बड़ा होने वाला है ना। कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए होंगे, कुछ बताया गया होगा क्या करना है, हम लोगों से मिले, उसके बाद फिर एक अलग डिनर उन्होंने किया जिसमें एग्जीक्यूटिव डायमंड आपको बुलाया, है ना। हमें उसी होटल में, दूसरे होटल में जिसमें थे हम लोग के, तो वहीं पर ही डिनर कराया, उनके साथ अलग से भी मीटिंग की गई जो, और हर किसी से पूछा गया क्या है कैसे है, और अब जाके उसके इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं। और मुझे लग रहा है जुलाई में जब फेस टू फेस होगा तब तक काफी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, है ना। और सितंबर के बाद तो बहुत ही अलग लेवल पे बिजनेस होगा। थैंक गॉड हम लोगों ने इन सब चीजों का इंतजार नहीं किया, हम पहले से तैयारी में थे, है ना। तो आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा फायदा हमको ही होने वाला है। So thank you, Mamta ma'am, for great hosting. Dr. Nalin Mishra, everyone, have a great day. Me and Bhavna are always with you. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू। और अब चलते हैं अपनी उस आवाज के साथ में अपने यूजर्स को बताने के लिए कि हाँ आपने बनाया तो आई एम द बेस्ट। 1 2 3 I am the best. 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 I am the I am the best. I am the best. I am the best. Take care. कल फिर I am the best. I am the best.